So what was the most challenging role for you? Most challenging role till now, Balveer. It was a 40 kg dress. Feminism के बारे में आपका क्या कहना है? It is a toxic positivity. इंटरनेट का जो रील्स चल रहे हैं ये एक अलग ही लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं चीजों को लेकर. आप हो क्यों रहे हो? हाँ नहीं आई एम जस्ट सेइंग या मत हो ना. yeah there's an actress जिन्होंने recently I think सन्यासी. Oh, shut up. No? Okay, we can skip this. I don't Please. know. I don't know why do they do that. And Instagram but it is also trending. Hashtag green flag, hashtag red flag. So what is green flag for Pavitra Punia? There is no green flag and there is no red flag for Pavitra Punia. पवित्रा like I said, हर्षा का शो का पहला एपिसोड है तो बस आशीर्वाद दो. Hey, hi guys, what's up? How are you? I'm sure you must be fine. Well, yes, I'm back with mic and camera. In front of camera. See, radio में मैं काफी टाइम से हूँ, since 2014. उसके बाद I've started podcast. I was doing podcast, but एक बहुत बड़ी चीज जो मैं मिस कर रही थी यार, खुद के नाम से पॉडकास्ट में नहीं कर रही थी. सो फाइनली आई एम बैक विद माई ओन शो, दैट्स हर्षा का शो. एंड इन दिस एपिसोड जो हमारा पहला एपिसोड है, आई हैव समवन वेरी वेरी अमेजिंग. सी, ये जो शो होने वाला है इसमें सारी बातें खुलकर होने वाली है. नो डिप्लोमेसी, नथिंग, एकदम खुलकर बात होगी, रियल टॉक होगी. एंड अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, टीवी इंडस्ट्री की, तो देयर समवन जो हमेशा खुलकर बात करती है. शी इज जस्ट सो बोल्ड एंड जो उनकी व्यूज हैं एकदम हटकर हैं. सो अभी तक आई थिंक आपने गेस कर लिया होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली द वेरी अमेजिंग पवित्रा पुनिया. You're looking so pretty. Thank you. What are you wearing? I'm wearing House of Hindu का नया collection, that is the Chanderi shirt. Oh, and कैसा लग रहा है आपको? Very pretty. I like the embroidery. I like the color combination, everything. Though I'm not a very fitted shirt fan. I always wear loose. But for some reasons, all my fans, they love shirts, and I think they're going to love this also. Yeah, and it is looking so pretty. Very pretty. Okay. Yeah, thank you. So, Pavitra, like I said, हर्षा का शो का पहला एपिसोड है, तो बस आशीर्वाद दो कि तथास्तु. ये शो इतना हिट, वो शिल्पा शेट्टी क्या कहती है, सुपर से भी ऊपर. हाँ, उतना हिट हो कि शाहरुख खान का पॉडकास्ट लेना है. यार इतना तो हम गारंटी दे सकते हैं. देखो कि हर्षा, हम आपके शो में, आप अगर हमारे साथ पहला शो कर रही हो, और क्योंकि हम बहुत धर्म कर्म में बिलीव रखते हैं, तो आई एम श्योर मैं तो फिर आप बोलेंगी पवित्रा तो ऐसी छोटी सी आई थी ऐसे पॉडकास्ट के लिए मेरे पास. नाउ आई हैव दीस बिग स्टार्स, यू नो. शाहरुख खान सारे कैमरा में बोल रहे हैं. शाहरुख खान. वैसे भी शाहरुख खान कहते हैं अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो, हाँ. तो पूरी कायनात है ना तुमसे मिलाने में लग जाती है. शाहरुख सर. सो डू यू बिलीव इन दिस? व्हाट डू यू थिंक? मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आजकल जो मैनिफेस्टेशन, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट. I believe in manifestation. Okay. And I do not really understand law of attraction. Okay. So law of attraction and manifestation. Okay, manifestation is something we are like thinking positive. We are thinking about that one particular thing and then we are getting it. That's manifestation. No? No. Okay. It's like, so law of attraction जितना मैंने सुना है, for me that is के, so for example, I like a boy. And मैं चाहती हूँ मुझे पसंद करे. So I'll be that tip top and एकदम खूबसूरत बन के जाऊंगी that वो attract हो मेरे से. Okay. Law of attraction. Yeah. Now when it comes to law of now वो attract हो आपसे, ये आपने सोचा है, तो आप वैसे बन रहे हो अभी. There is no surety सामने से. Now very thin line in law of manifestation is you need to fake it till you make it. Okay. It is mine. Just fake it. It is mine. ये मेरा ही तो है. It's like imagine for example tomorrow मुझे 1,000 करोड़ रुपए चाहिए. I want to be that. Yeah. So from today itself it's my thing and it is since childhood, and I think recently there was one podcast also that I did. Okay. In an interview, not podcast. There I mentioned this thing very clearly. I was like कि जब मैं छोटी थी, it's like when I was flying with Kingfisher, I have no idea मैं ऐसे क्यों बोलती थी, but मैं हर किसी को बोलना शुरू कर दिया that I'm flying with Kingfisher. Okay. And it happened. Nice. So अभी अगर मेरे को वो चीज चाहिए तो मैं अभी से आपको बोलूंगी I have 1 CR in my account. Okay. So what happens technically? We need to feel it. मतलब like okay, we have it.
No, there is no feeling. So Okay. understand what happens when in front of 6 people you're saying, Harsha is saying Yeah. that I have 1 CR, 1000 CR in my account. Yeah. So even if you don't have, you Yeah. will have those people only talking to you because they know your worth, even if you Okay. don't have it. Okay. Yeah. So now you have those people with whom you can make it. Okay. So it is a very thin line. Law of attraction for me doesn't exist. Yeah. I don't believe in that. Okay. Law of manifestation exists. Exists. And that too, it exists in a present tense. I have it. Okay. I own it. मैंने शाहरुख खान का पॉडकास्ट किया है, शाहरुख खान के साथ किया है. Exactly. और वो रिलीज होने वाला है. Oh yes, it is Exactly. releasing very soon. Exactly. I like it. Okay, तो शो शुरू हो चुका है. In my show, मैंने एक चीज जो डिसाइड करी है, सबसे ज्यादा जो हमारे दिल के करीब होती है, वो होता है हमारा फोन. So आपका फोन कहाँ है? एकदम बाजू में. तो बस अपने फोन पर आपको हाथ रखकर कहना है, मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी. जो कहूंगी सच कहूंगी. सी, फोन कितना ज्यादा प्रिय है कि रिस्क नहीं लेना चाह रही है ये. ये जो हमारी होस्ट है ना, यस, इन्होंने ऐसे घुमा के मुझे ऐसे Yeah. किया, खाओ कसम. हिट कराना है शो, यू नो, कैसे भी करके. मैं जो कहूंगी, मैं पवित्रा पुनिया, मैं पवित्रा पुनिया जो कहूंगी जो कहूंगी सच कहूंगी. हिसाब से सच कहूंगी. वेरी स्मार्ट. मैं पवित्रा पुनिया जो कहूंगी सच कहूंगी. सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी. सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी. किसी को बुरा लगा तो तेल लेने जाओ. ठीक है, चलो बताओ फिर नेहा पुनिया कौन है? मैं मतलब तुम लोग समझ रहे हो, कसम एप्लीकेबल ही नहीं है. Okay. Yes. So guys, did you know she is Neha Punia? So Neha Punia से पवित्रा पुनिया like how? हाँ, मैंने आधार कार्ड देख लिया था चुपचाप से. अच्छा जाने वाला है ये. Okay. Okay, so I tell you what. I'm born with the name नेहा. माँ बाप ने रखा Yeah. नेहा. मुझे कभी एक्ट्रेस बनना तो नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ कि सडनली मुझे ऑफर्स आने लगे मॉडलिंग के. Yeah. लंबी You have हाइट, good height, personality, features. and everything. modeling basically it is all about height and Yeah. your figure, Yeah. even if you're not beautiful. But you are. So thank you. So I was like, मैं इंडस्ट्री में तो जाऊंगी, मैं मॉडलिंग तो करूंगी, लेकिन ये नेहा Okay. खत्म हो गया. शुड बी सम नेम, मतलब Yeah. हटके होना चाहिए. नेहा. एंड दैट टाइम ना आई थिंक कुछ सीरियल्स ऐसे थे जिसमें मैंने देखा था कि एक्ट्रेसेस के नाम थे. दो मुझे उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मैं एक्ट्रेस बनने वाली हूँ Okay. मॉडलिंग के हिसाब से, लेकिन Yeah. मैंने बोला कॉमन नेम है. Okay. Yeah. एंड देन देयर यूज्ड टू बी वन सीरियल दैट टाइम जो आता था, मैं नाम भूल रही हूँ उसका, लेकिन उसमें कैरेक्टर का नाम था पवित्रा. Okay. I have no idea. And But till that's a now- beautiful name. है ना? Yeah, it टिल is. नाउ you just type पवित्रा, only one thing comes, पवित्र रिश्ता. Okay. Yeah. Pavitra Rishta. There is no other Pavitra. Yeah. And So- Pavitra Punia. And the meaning Pavitra. पवित्र. Yeah. पवित्र. So आप एक बहुत छोटी सी जगह से आते हो. So कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए कि उधर से एकदम टीवी इंडस्ट्री में आना, एक्टिंग फील्ड में आना, एक अलग ही पिक्चर मतलब हो गया. आई एम श्योर बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे. Very challenging. Very challenging in a way. When was the कि first time like आपने जब कैमरा फेस किया था? 2009. या 2009 में कोई शो? 2009 was my Splitsvilla. Yeah, that's what. First time on screen आई हूँ. Okay. But behind the scene तो modeling में we don't actually face the camera. The Yeah. camera is behind us. कभी फैमिली ने बोला नहीं 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 इधर नहीं जाना, क्योंकि जिस यू नो बैकग्राउंड से हम आते My हैं. father used to always have this thing कि late क्यों आते हो? Okay. Like for a girl, I'm Yeah, talking of about course. 2006 and 7. तो उस time पे my father was a Delhi police officer. तो फिर तो वो और एक होता है टाइम से घर आना, एक रूटीन होता है. या तो उस टाइम पे मेरे फादर को ऐसे होता था कि ये तो कोई टाइम नहीं है घर आने का, 2-2 3-3 बजे. तो तब उस टाइम पे कभी मेरा भाई सपोर्ट कर देता था. कोई बात नहीं, वो इवेंट पे गई है तो. फिर मम्मी कर देती थी. तो ऐसे और ऐसा नहीं है कि बहुत पीसफुली जाता था, झगड़े बहुत होते थे कि तुम बिगाड़ रहे हो इसको, लड़की है रात को 2 बजे घर आती है. यू नो देयर इज अ थिंग, आई एम ब्रॉट अप इन दिल्ली. Yeah, of course. सो दिल्ली में ना पंचायती मौसियां बहुत सारी होती हैं. Yes. Actually होती हर जगह, शायद दिल्ली में ज्यादा होंगी. मैं जहाँ रही हूँ मैं उधर का. तो वो रात को सोती नहीं थी ओ कितने बजे कि आ ये रही कितने है? बजे आई है. और अगले दिन दे यूज्ड टू मेक श्योर कि वो मेरी मम्मी को बोलेंगी कि तुम्हारी बेटी कल रात को तो 2 बजे दिखी 2 है. बजे आई थी, कहाँ गई थी इतना लेट, रोकते नहीं कैसे? हाँ, हाथ से निकल जाएगी. आंटी अपना देखो. Exactly.
why do you have to be involved in others family? I don't understand. So even so I tell you, इससे बात क्या निकल रही है कि अगर पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं ना तो द सोसाइटी पुश देम टू देयर लिमिट कि वो अपने बच्चे को ऐसे पकड़ के रखते हैं कि तुम्हारी वजह से हम सुनने को पड़ रहा है। एग्जैक्टली, मतलब वो सपोर्ट भी कर रहे हैं बट इतना सुनने को मिल जाएगा तो वो भी परेशान हो जाते हैं कि यार कितना सुनेंगे। सो फॉर दिस थिंग आई ऑलवेज ब्लेम सोसाइटी कि अगर लड़कियां कहीं पे पीछे रहती ना, इट इज ऑलवेज सोसाइटी, इट्स नॉट द फैमिली। नो पेरेंट्स का दे वांट, फैमिली तो चाहती है कि हमारा बच्चा भी आगे बढ़े बट सोसाइटी इतना ज्यादा प्रेशर डाल देती है कि फिर उनको भी लगता है कि इट इज राइट रॉन्ग, क्या करें, कल क्या होगा, लड़की वाली बात है, शादी होनी है। एग्जैक्टली, सो मेनी क्वेश्चंस। सो पवित्रा, यू आर द क्वीन ऑफ रियलिटी शोज, एक्चुअली द रियल क्वीन। आपसे अगर मैं पूछूं तो सबसे ज्यादा मजा आपको कौन से रियलिटी शो में आया? एवरी रियलिटी शो, कहीं से कुछ ना कुछ सीखने को मिला? आई थिंक मेरे लिए हर रियलिटी शो की जंग ना एक अलग जंग रही है। आई डोंट बिलीव इन विनर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज रियलिटी शोज में इट इज अ वेरी ब्लंट स्टेटमेंट बट आई थिंक आई एम वेरी वेरी ब्लंट एंड अपफ्रंट टू टॉक अबाउट इट, दैट वेरी रेयर रियलिटी शोज आर देयर जहाँ पे जस्टिस होता है विनर के लिए। या बिकॉज हम लोग कहीं ना कहीं जब देखते हैं पब्लिक आई से देखा जाए तो यही कि इट्स प्लान्ड, इट्स ऑलवेज वही विनर, इट्स 95% रिग्ड। ओके, कि विनर आप सोचते हो कि कौन जीतना चाहिए, एंड दैट टू अगेन डिपेंड्स ऑन देयर फॉलोअर्स। या एक्चुअली अब वो भले ही आपको पसंद नहीं कर रहे, आपके कंटेस्ट वो फॉलोअर्स उसको उतने ही पसंद कर रहे, लेकिन बाकी की दुनिया किसी और को पसंद, लेकिन आपको वो चाहिए। सो वो वाला हिसाब रहता है। तो मेरे लिए कभी भी रियलिटी शो में रहा नहीं कि मैं शो जीतूं, क्योंकि मुझे पता है एंड में जाके क्या होने वाला है। सो आई ऑलवेज मेक श्योर कि भले ही मैं यहाँ पे 7 दिन रहूं, लेकिन वो 7 दिन की जर्नी ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को याद रहे दैट समबडी केम एंड प्लेड। सो आई ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर एक्नॉलेजिंग दैट। पता नहीं कोई समझता है कि नहीं उसको क्वीन वाली चीज, बट आई always say this thing to myself that, and to other people also, that I have always been a reality show queen. भले ही वो फिर दिखाते कि नहीं दिखाते, but reality दे, जो personality आपकी बाहर आती है, मैं पवित्रा पुनिया हूँ। Actually, like imagine in that house, you won't believe, I was the one who used to take care of the kitchen. Okay, yeah. I was the one who used to take care of the kitchen literally. Okay. And what was portrayed was a different thing, that somebody else was taking care of the kitchen. So किस तरीके से उसे दिखाया जा रहा है पब्लिक को? You understand? क्योंकि हम 24 घंटे वहाँ मेहनत करते हैं, आपको सिर्फ 1 घंटा मिलता है वो देखने का, 45 minutes. And उसमें से सिर्फ जिसको ने ज्यादा हाईलाइट करना है उसका अच्छा That's it. Okay. So reality shows are my love, like they flow in my nerves. It's मेरे को कभी भी reality show का ऑफर आता है ना, आप भले ये बोलोगे ना that we don't have money to pay. Yeah. It's okay. Everything is not money. You want to show the real part. Yes. Guys, मैं बता दूं, शो शुरू होने से पहले I told her कि चलो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते. She was like no, सीधा कैमरे पर बात करेंगे. तो हमने कोई सवाल कुछ भी डिस्कस नहीं किया. It's all going real. Thank you. So जनता के प्यार की बात करें तो बिग बॉस से मतलब एक आपको अलग ही हाइप मिला, लोगों ने बहुत प्यार किया. So बिग बॉस के बारे में क्या कहोगे? वो भी कितना स्क्रिप्टेड होता है? Big Boss is never scripted in regards to the contestant. आप बिग बॉस कभी भी उनको ये नहीं बोलते कि तुमको ये बोलना है, तुमको लड़ना है, तुमको प्यार करना है. बट बाकी एडिटिंग का काम होता है. The scripting is editing. Yeah. How they show the person. Yeah. Now reality उनको पता होती है जो घर से निकल के आ चुके हैं. ऑडियंस बेचारी गुमराह हो जाती है. Yeah. You understand? Obviously. Now अभी एक recently चीज हुई थी. I used to favor रजत दलाल. My community, I like him. Yeah. As a brother, as a friend, whatever, as a human being, मुझे पसंद है कि मैं उसे सपोर्ट करूं. You cannot come and tell me that I am supporting a criminal. First. You cannot come and tell me कि अरे ये तो आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करो. So first of all, anybody that comes in Big Boss house has a history. कोई भी वहाँ पे सच्चा आदमी नहीं आता. Everybody has a history. तो अगर मैं आपके ही लोगों की हिस्ट्री देखूं, जो लोग ट्रोलर्स आते हैं, वो लोग बोलते हैं अरे तुमने इसको ये किया, अरे तुमने, इनफैक्ट इन इंडस्ट्री ऑल्सो के अरे इसने तो इसके लिए इसको सपोर्ट कर रही है, छोड़ो इससे बात ही नहीं करनी, ये हमारे वाले को क्यों नहीं सपोर्ट कर रही. This is I'm talking about the celebrities. It happens. As if I give a flying whatever. I don't care. Do I need to open the book of the contestant that you are supporting? So never come in front of my lane where I'm walking, because my name is actually Pavitra Punya. I know where to walk. So it's very clear. So reality shows are never scripted. The winners are scripted. Okay. It hurts.
सुनकर yeah. खुलासा. So reality shows में से निकलने के बाद okay if we talk about Big Boss only, so कितना change आपकी personality में आया 3 महीने उस घर में and then बाहर आकर did you feel any change Oh, in what your a personality? turmoil. No. Okay. What a turmoilful time for my life. Oh my God, I really have no idea. Like, मुझे ऐसे लगा था कि मैंने किया क्यों ये शो? Did you regret? I regret it. Okay. एंड अगर मैं खुद को थोड़ा सा नॉर्मल समझती थी कि नहीं नहीं ऐसा क्या कर दिया, अच्छा तो किया है. आई स्पेंट 60 days in that house without any PR, Harsha. Yeah. Without any marketing. And people were loving your personality, your attitude, the way you were talking, जो भी था खुलकर सामने बोलना. I did not burn a single money, single penny of mine. Nothing. एक पैसा नहीं मैंने बर्बाद किया, जलाया वो PR के चक्कर में, वो फेक पलटन जो आती है. No. I was there. It is me. Take it or leave it. Yeah. But when I came out, Yeah. so rather than me more regretting it, क्योंकि एकदम से काम ही रुक गया. Yeah. People started coming and telling me you should have not done the Big Boss. It is Big Boss. Now you have to sit at home because nobody is going to give you work. So ऐसा कुछ हुआ सारी चीजें मतलब what did you face actually? The work reality. was not coming. Okay, is it? The work was not coming. It just stopped. Oh. It just stopped, and I really have no idea what happened, where I was going wrong, because if being real in this society is a sin, I would love to be a sinner then, bro. Okay. I'm not going to butter you. No, Yeah, I am not. acting and all. Yeah. Do you? Okay, you met me. Do you think so? Any angle of mine, any hair, any tiptoe, anywhere that I'm a people pleaser. No, बिल्कुल भी नहीं. I cannot be that. Yeah, you can't act. I can't act. You can I act. act where I Yeah, have जहाँ to act. ज़रूरत Now है. that is also insecurity because Yeah. she acts. Okay, yeah. So you know, मैं पवित्रा बहुत जगह से फंसी. ऐसा लग रहा था that it's one woman holding a gun and there are only दुश्मन ही दुश्मन है आजू बाजू. So sometimes I just feel so connected with Kangana Ranaut. It's like I can feel you, bro. I can so feel you. But yeah, good thing. It was a turmoil full time. Yeah. The work was not there. The money was getting over. Okay. Money was getting over in a way that you don't touch your savings. Yeah. You know. Now even if I come from a very solid background, Yeah. the community that I come from, हमारी community में ज़मीनें इतनी होती हैं कि आप ज़मीन बेच के अपना घर नहीं चलाते हो. नहीं. Of course not. Right? Yeah. You understand? वो जो हमारा आ रहा है पैसा बस उसी से चल रहा है, जो उससे सेविंग चलता है, है, जो exactly. जमीन है वो वही है. किसको देखा है अपनी ज़मीन बेच के बिजनेस शुरू No, करते हुए? No, ऐसे नहीं होता. So you cannot do that. You cannot ask from your parents because it's like बच्चा परेशान है. So you're torturing them indirectly. Yeah. Now they will be insecure. They will suffer. And as soon as I came out of Big Boss, my father met with an accident where his lower body stopped working. He was paralyzed for 3 years. Lower body. Now imagine a Delhi police officer 24/7 in bed. So it was a massive emotional, mental, financial turmoil on my life, and I cannot forget that ever. क्या उसी इन्हीं सारी चीजों के बाद आप इतना ज्यादा स्पिरिचुअल हुए हो, इन सारी चीजों में बिलीव करने लगे हो? So this thing ना actually हाँ, जो मुझे लास्ट जो फाइनल झटका देना था ना, वो इसके बाद हुआ. इससे पहले if I talk about, so when I was a kid ना 3-4 साल की, Okay. तब से ही I used to see things. Okay. तो मुझे चीज़ें शुरू से दिखती थी. I used to see dead people. Seriously? Yeah. This ये कहानी थोड़ा लगती है, but you know when you are in industry ना, there's so many things you cannot be vocal about. Yeah, of course, I understand. Because it's a taboo. Yeah, and people are there to judge you. Exactly. And I am not going to be your piece of judgment. If anything is coming out of my mouth, you want to judge anything, you can judge. Yeah. Not my business, not my kitchen. I'm not going to cook anything Yeah, there. right. Your kitchen. But by me vocalizing something जो तुम accept नहीं करोगे और उसके ऊपर 50 अच्छा, then I heard so you know बहुत सारे spiritual लोगों को ये भी बोला जाता है ये काला जादू करती है. Oh my काला God. जादू करता है ये. Because they don't know what is spirituality actually. तो अपना कुछ भी आइडिया लगा रहे हैं सब. तो बुद्धों से कहाँ सर मारोगे आप अपना? नहीं मारना. So जो major transformation था ना वो अब आया था. Okay.
because it was like कि life is not going the way it should go, so it means मैं कहीं कुछ गलती कर रही हूँ. तो फिर वो शुरू करना पड़ा. ओके, एंड फिर गलती को सुधारा. फिर सुधारा. कैसे? बहुत खूबसूरती से. गुड. एंड बहुत खूबसूरती से आने वाला टाइम है. Yes. सो वी आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी. कुंभ हर जगह बस इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं. इंस्टाग्राम खोलते हैं, इट्स ऑल कुंभ, एंड वी फील लाइक ओ यार वी वांट टू गो. आर यू प्लानिंग लाइक गोइंग एंड विजिट देयर? I tell you what, I am very spiritual, yet there are some practical notes that I always keep with me. Okay. मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ. मैं सर फिरी स्पिरिचुअल नहीं हूँ कि मुझे गाड़ी अगर 2 बैंग हुई तो मुझे ये दिखे अरे ये भगवान ने बैंग कराई है. ये नहीं कि किसी की गलती है. Exactly. So there are, I think any spiritual person, for example Sadhguru also, he's a very practical person. He talks logic only. Logic. So I am always, my spirituality is always logic driven. It is never illogical. आज अगर तुम्हारे सर में दर्द है तो मैं पहले डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी. ये नहीं बोलूंगी झाड़ा लगा देती हूँ, मर जाएगा वो. Of course. You understand? So for me कुंभ ना, it has a very major significance, no doubt in that. और मेरी बहुत तमन्ना है कि मैं चली जाऊँ. ये कुंभ मैं कर आऊँ क्योंकि पता नहीं फिर कितने साल बाद आएगा. महाकुंभ बेसिकली. बट अगर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच पे आऊं, वही जल है. द वाटर इज द ओनली एलिमेंट दैट इज लिविंग. वो सुनता है आपको. वो आपको फ्लोरिश करता है. वो आपको मरने से बचाता है. आप खाए बिना रह सकते हो, आप पानी के बिना नहीं रहते हो until and unless you are some तपस्वी. You understand? पानी मतलब तुम्हारे सामने कितने भी डिशेस, तुम्हें प्यास लगे तो तुम्हें पानी ही चाहिए. और पानी एक ऐसी चीज है तुम्हारी भूख भी मार देता है. कि थोड़ा सा पानी पी लो, भूख मर जाएगी. सो वाटर इज द लिविंग एलिमेंट. दैट वाटर इज एवरीवेयर. इवन इफ यू फील, और आपकी इंटेंशन, सी स्पिरिचुअलिटी इज इंटेंशन. आपका मन क्या बोलता है, आपका मोह क्या है. आप वहां जाके एक डुबकी लगाओ, बाहर निकलो और 50 जितने डुबकी लगा रहे थे उनकी बुराई करो तो वो कुछ नहीं हुआ. आप वहां डुबकी लगा रहे हो, आप इंटरनेट देखो खोल के. कुंभ में इतनी भीड़, लोग धक्के खा रहे, कर रहे, वो कर रहे, अरे ऐसा अरे वैसा. आपने क्या पुण्य कमाया? आप वहां से आके फीडबैक ये दे रहे हो. What are you doing? Everyone is talking, अरे इतनी हम परेशान हो गए, ये हो गया. पाप धोया नहीं है, चढ़ा के आए हो. इनफैक्ट व्हाट आई फील कि यार अच्छे काम करो, बस फिर सब सही हो जाएगा. जैसे जरूरत नहीं है, बट हाँ ये सारी चीजें हमें पीस मिलता है. जाओ मंदिर जाकर पीस मिलता है. जाओ, बाकी सिर्फ अच्छे काम करो, सब कुछ सेटल है. तो वहां उस कुंभ में जितने लोग गए हैं ना, जो सिर्फ अपनी तृप्ति के लिए जा रहे हैं, और उनको ये मतलब नहीं है कि कौन किसको कुचल रहा है, उनको ये मतलब नहीं है कि अरे फलाना तो पहले भेज दिया तुमने, उनको कुछ नहीं मिलने वाला. बट जो सिर्फ तृप्ति के लिए गए हैं ना, वो गए हैं. एंड ऑनेस्टली ना, ये कुंभ जैसी चीज ना, इट इज नॉट समथिंग दैट इज फॉर नॉर्मल लोग. वो साधु लोग जो वो हमारी फौज के लिए हैं. द प्रोटेक्टर्स ऑफ सनातन नागास. वो छुपे हुए सारे के सारे योगी. इट इज ऑल कमर्शियल नाउ. एवरीवन इज देयर. करोड़ों में भीड़ हो रही है और एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात. इट्स ऑल कमर्शियल. आपने हर चीज कमर्शियलाइज कर दी है, तो वहां पे पुण्य क्या बचा? और भगवान तो पहले दिन आके डुबकी लगा के चले गए. वो चले गए. और अगर तुम्हें अब डुबकी लगानी है ना, तो आप वो एक जल ले लो, गंगा का जल. घर में गंगा जल सबका होता है. उसमें वो इंटेंशन डाल के कि हम नहीं आ सकते, लेकिन आप तो हर जगह हो ना. और अगर सिर्फ उससे नहा लिए, वो उसके ही बराबर है. यू डोंट हैव टू गो. और उस पागलपन में भागना नहीं है आपको. मरना नहीं है. आज सुबह भी शायद ये मौनी अमावस्या है, तो उसके चक्कर में कुछ बहुत ज्यादा भीड़ है. सो फॉर मी कुंभ हैज अ सिग्निफिकेंस. लेकिन अगर नहीं जाना हो पा रहा है, तो उसको आप घर पे रह के भी कर सकते हो. ऑफ कोर्स. और मन साफ रखने की जरूरत है. दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वहां से आके मत बोलो अरे वो या ओके. सो पवित्रा, बहुत सारे रोल्स आपने किए हैं टीवी में. इफ आई आस्क यू लाइक नेगेटिव एंड पॉजिटिव, आपको कौन से रोल करने में ज्यादा? नेगेटिव. यू आर दैट नेगेटिव. ओके, एक चीज जो मैं सोचूं, मैं अपने फ्रेंड से भी बात कर रही थी कि आप वो नेगेटिव रोल प्ले करते हो जो लोगों को पसंद भी आते हैं. अदरवाइज होता है ना, नहीं यार नेगेटिव इंसान है, इसको अच्छा नहीं लगते, ऐसा वाला. आपके साथ केस अलग है. भले ही नेगेटिव रोल कर रही है, लेकिन यार बंदी, लोग याद रखते हैं आपको. लव में, लाइक आई स्टिल रिमेम्बर, मेरा लास्ट शो नागिन में नागमणि में शूट कर रही थी. सो राजस्थान वगैरह से बहुत सारे क्या होता है, सेट्स पे
फैंस आ जाते हैं Yeah. या सेट्स पे जो यूनिट होती है जो वर्कर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कैमरा दादा हो गए, तो इनकी फैमिली को अगर यहाँ पे आके हमसे मिलना है, अच्छा, हाँ, फोटो लेनी है, तो फैमिली आ गई। नाउ इनको तो पता है कि हमारी इंडस्ट्री कैसे काम Yeah. करती है, राइट? लेकिन तुमको उनको पता नहीं है, पता, हाँ। तुम्हारी फैमिली को, एक्सटेंडेड फैमिली को नहीं पता हमारी इंडस्ट्री। Yeah. सो आई स्टिल रिमेम्बर राजस्थान से कुछ लोग आए थे एंड प्रॉपर वो ट्रेडिशनल राजस्थानी, एंड देयर वाज वन दादी आल्सो, एंड शी सॉ मी and she was like, I'm gonna say it in my language, because I still remember those words. Okay. And I'm like, Yari Bervirand. I was like, what? What did you just say? Yeah. And then उसके जो बेटे थे ना, वो बोले कि नहीं वो आपको देखती है ना, तो जैसी आपकी एंट्री होती है ना, तो इनको देखना भी होता है कि आप कब आओगे, और जैसी आप आते हो ना, इसे मारो इसे मर जाए। बोले बट रमेश ऐसे कौन बोलता है? So, for some reasons, yes, I'm connecting with you. Every show of mine, Harshad, people love me. Yeah. Even if they want to abuse me, na, they love abusing me. Yeah. वो क्योंकि आपकी जो एक्टिंग है that is so real, उनको लगता है रियल में हो रहा है ऐसा, ये मतलब you know people are liking it. मेरे लिए ना, as soon as I come in those clothes ना, I live that. It's me then. I am, the moment I'm not coming home, that time I'm that villain only. Okay. एंड टिल द टाइम यू डोंट फील इट ना, तो लोग ना गुमराह रहते हैं कि इसको पसंद करना है कि नहीं करना है, अच्छा वो मजा नहीं आ रहा है, वो डेप्थ नहीं है, एंड द मोमेंट यू अडेप्ट इट ना कंप्लीटली, सो आई डोंट नो इफ यू हैव सीन, देयर इज अ मूवी कॉल्ड कुंग फू किड, No, I heard about कराटे it. किड, Karate, yeah, Karate Kid. दैट विल स्मिथ का बेटा, हाँ मतलब बहुत पुरानी मूवी हाँ, है, हाँ, I have seen. तो उसमें इफ यू सी देयर इज अ सीन के बहुत मुश्किल प्रैक्टिस होती है जब वो कोबरा के सामने ऐसे ऐसे, वो बहुत उसको, पहले देखी थी बट या अगर ऑडियंस कनेक्ट कर रही है तो वो ऐसे हिप्नोटाइज कर लेता है. There are skills that Okay. you, being a positive or a negative character, I'll talk about the negative characters, a vamp, बहुत पतली बारीक स्किल्स लगती हैं वो करने के लिए. So that time the audience is the cobra, Yeah. and this is me. Yeah. So Who's I know, hypnotizing. yeah, how to hypnotize you. Yeah. So- And your eyes, your look, yeah. Yeah. Okay. So what was the most challenging role for you? Most challenging role till now, Balveer. Balveer. It was a 40 kg dress. 40 किलो. 40 किलो. 40 किलो में रोज अपने बदन पे रखती थी. मेरा हेड गेयर सिर्फ 10 से 12 किलो का था. मेरा वॉन्ड 10 किलो का था. Oh my God. और उसमें हम फाइट करते थे. 40 किलो मतलब it is so difficult. मतलब हार्नेस पे जब हम लटकते थे ना फाइट सीन्स के लिए, तो फाइट मास्टर्स भी बोलते थे अरे ये जो पहना है इसको हल्का करो. Obviously it is so difficult. बट फील ही नहीं आएगा ना. So that time I'm in a जंग का मैदान. It's all about the feel. तुमने जहाँ खुद से चोरी की ना, ऑडियंस पकड़ लेती चुराया है. Yeah. तो they will not confirm. For me, my work is everything. Yeah. मैं इतना And सा that's your करूँगी. hard work. Yeah. So Pavitra, you have been very vocal about your relationships. So I'm sure कि सबके अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं, बुरे एक्सपीरियंस भी होते हैं. एंड आज की जो जनरेशन है कोई ना कोई डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, ऑल बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप्स. सो जितने भी यंग कपल हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? थोड़ा सा अजीब लगेगा, बुरा लगेगा, बट आई विल जस्ट वन वेरी हार्टफेल्ट रिक्वेस्ट. ट्राई एंड स्टिक टू योर रिलीजन. It's good because what happens ना, it's not only one person that you get married to. पति नहीं आता है या पत्नी नहीं आती, खानदान से शादी होती है. सो एंड जब वहाँ ऐसे एकदम ऊपर नीचे वाला हिसाब होता है ना, तो क्लैशेस आने ही आने होते हैं. एग्जैक्टली. वेरी रेयर केसेस जहाँ पे ऐसे होता है कि लड़के ने पेरेंट्स को छोड़ दिया एंड देन वो सेपरेट रह रहे हैं. दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. यू कैन नॉट लीव योर पेरेंट्स ऑफ कोर्स फॉर योर स्पाउसेस. एडवाइस फॉर youth who are getting married, do not blame the parents for anything. सबसे पहला हक होता है उनका अपने बच्चे के ऊपर. लड़की है तो उसके माँ बाप करेगा, लड़का है तो उसके माँ बाप करेगा. एंड ये चीज दोनों को समझने की. मैरिज इज ऑल अबाउट अ गेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. इट इज नॉट लव. इट इज ऑल अंडरस्टैंडिंग. और सॉरी बॉस, निभाना तो पड़ता है. बिना निभाए कुछ नहीं चलता. एडजस्टमेंट तो करने पड़ते हैं थोड़े बहुत दोनों तरफ से. निभाना तो पड़ेगा. अब आप बोलोगी मैं तो नहीं बनाती खाना, तुम नहीं, सॉरी अब मेरे मुंह से थोड़ी चीजें कटाक्ष निकल जाती, लेकिन आप औरत हो, पैदा होते ही सबसे पहले रसोई संभालनी आनी चाहिए.
आपको ये पता होना चाहिए कि घर में कितने लोग हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपकी माँ कुछ काम कर रही है तो वो आपको सीखो. Yeah. आई फील अशेम्ड समटाइम्स जब लड़कियां बोलती हैं हमें तो चाय भी बनानी नहीं आती. Yeah, So they you don't flaunt. deserve to be a woman. Yeah, they flaunt. What is a man and a woman? A man is a provider, a woman is a nurturer. If you cannot take care of that man, why is he providing you then? Yeah. He can have a maid at home. Yeah. आप खुद ही खाना गर्म करके खा लो. नहीं, वो नहीं खाएगा. वो बेचारा बाहर से मेहनत करके घर पे आ रहा है, आपको उसे खिलाना है. वो पूरा दिन घर से बाहर है, तो अगर आपको उसको आधा घंटा उसकी सेवा करनी है, इट्स नॉट अ हार्म. ये तो शास्त्रों में लिखा है यार. पति सेवा करना इज अ बिग थिंग. लक्ष्मी जी आज भी विष्णु भगवान के देखा, कोई भी सीरियल देख लो अभी भी उठा लो, पैर दबाती है उनके. देयर इज अ रीजन कि वो पैरों पे बैठी है. इमेजिन शी इज लक्ष्मी, जिसके बिना इस सृष्टि में कुछ नहीं हो सकता. कुछ नहीं हो सकता आज की डेट में उसके बिना. स्टिल शी इज देयर. या सो द टाइम जो है ना काफी चेंज हो गया ना. लेडी जो फीमेल है वो भी काम कर रही हैं, तो कैसे इस तरीके को बैलेंस करें? लाइक दोनों ही वर्किंग है, देन हाउ टू गिव टाइम, लाइक कैसे? इसीलिए आई थिंक मैं सिर्फ अपना एग्जांपल दूंगी. आई Yeah. अंडरस्टूड इट. मैं किसी के बारे में ना तो कुछ जज करूंगी कौन कैसा है, बट मैं खुद का एक एग्जांपल दूंगी. मैं हमारी जो शूटिंग लाइन है ना हर्षा, या तो हम लोग ना सुबह निकलते हैं, रात में 7 बजे तक हमें सेट पे पहुंचना होता है. 6 बजे हम लोग उठ जाते हैं, आधे घंटे में नहा धो के हम लोग निकलते हैं. 7 बजे हम लोग सेट पे पहुंचते हैं. 7 बजे से लेके हमें ये नहीं पता कि हमारा 7 बजे पैकअप होने वाला है कि 10 बजे. You have no अब idea. फिर रात में ट्रैफिक के कारण कई बार ऐसा होता है 1 घंटे बाद हम घर आ रहे हैं ना. घर आने के बाद मैं आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, या और मैं किसी एंगल से देहात नहीं लगती. No, अगर of ऐसा course, बोल yeah. देखे लोग कि अरे देहातियों के काम है तो हम तो मॉडर्न लोग हैं. मॉडर्न. अगर मैं अपनी बात करूं, मैं आई मेक श्योर आई एम कमिंग होम. भले ही मेड ने घर का पूरा काम किया है, मेरा 1 घंटा मैं अपने घर को देती हूँ. उसने एक कप ऐसे रखा हुआ है, साफ करके कोई बात नहीं, तो मैं उसको उधर से ठीक करती हूँ. क्वेश्चन मुझे ऐसे पसंद है तो मैं खुद लगाऊंगी. किचन के अंदर जाऊंगी, मुझे कोई चीज पसंद है मैं खुद बना के खाऊंगी. मैं अपना खाना खुद गर्म करके खाऊंगी. अगर नहीं बना है, कोई घर पे है, तो मैं खुद बनाऊंगी उनके लिए. नाउ द बैलेंस इज दिस कि अगर आपने 14 घंटे अपने काम को दिए, 12 घंटे अपने काम को दिए, 1 घंटा आप अपने घर को आपको अपने घर को देना पड़ेगा. नाउ इट इज अ बैलेंस. नाउ इमेजिन इतना लंबे आवर्स आपके खुद के लिए, 1 घंटा तो घर के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए बनता है, सास ससुर के लिए. उसमें आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं तो थक गई, तो मत करो. बच्चे आपके नैनी पाल रही हैं. वो तो इवन आई डोंट अंडरस्टैंड दैट थिंग. व्हाट इज हैपनिंग? एग्जैक्टली. या सो द यूथ को सिर्फ यही है कि इफ यू आर अ वर्किंग वुमन, if तो प्लीज बैलेंस करो. there cannot be any competition between a man and a woman. या नेवर. ओके, इससे एक सवाल मेरे को स्ट्राइक हुआ है. फेमिनिज्म के बारे में आपका क्या कहना है? कि men and women equal जो चल रहा है feminism for me, very rarely, I think 1% there are people who talks like me, who are working, yet they are balancing their home also, are the good feminine. Otherwise it is a toxic positivity that is spread. So feminism, whatever I hear, is a toxic positivity. There are people like it's like ये काम मैं क्यों कर रही हूँ, वो भी तो कर सकता है. मतलब एक अलग सी एक होड़ शुरू हो गई है आगे आने वाले बच्चों को. There's so okay, बात इतनी शुरू हो ही गई है, so there's so many people who says, why are you wearing 24/7 suits? Now I'm talking about my friend circle. Okay. I will not take the name, but my friend circle. You are in industry now. Why do you have to wear this? Wear something glamorous. Do some bikini shoot and everything. Okay. No. No. Yeah. I'm wearing suit. If you find me dehati. Yeah. I'm wearing suit. You find me cute. Yeah. I am wearing suit, but this is for sure. Yeah. I love it. Yeah. I love it. If I'm not comfortable showing my boobs, I will not show them. Yeah. मुझे नहीं पसंद है मैं चड्डी पहन के बाहर निकलूं. I have till now in my life I have never worn denim shorts. I don't want to show my thighs to any other people. You understand? हाँ, if there is a red carpet where the requirement is such, that is something I would love to wear it. लेकिन आप बोलोगे मैं एयरपोर्ट पे वो ऐसे करके जाऊं, that airport is not a place. जहाँ पे सिर्फ हाईलाइट होने के लिए. So anyone goes there, stand there, do that. There are kids also. बच्चे हैं पीछे. If not about yourself, please think about those kids. Actually, there's a place. हर एक जगह होती है. And it is a heartfelt request to the government also. अगर हम इंडिया में हैं और अगर हम भारतीय सभ्यता की बात करते,
तो इन चीजों को तो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. दिस इज एक्चुअली अ डिबेटेबल थिंग फॉर गवर्नमेंट. आप सारी चीजें छोड़ दो, आप पहले सभ्यता के तो लेके आओ. हमारा धर्म बड़ा, हमारा सनातन बड़ा, सब कुछ वी आर अव्वल. हाँ, अब हमारे बॉन्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इतने स्ट्रांग हो गए थैंक्स टू मिस्टर मोदी. या एक्चुअली सो इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर द गवर्नमेंट आल्सो, प्लीज स्टॉप ऑल दिस. कहीं पे आपने मंदिर से चलो बंद किया कि अब मंदिर में बैन हो गए, छोटे कपड़े पहन के नहीं जाते, लेकिन आपको ये भी तो थोड़ा करना पड़ेगा ना कि एयरपोर्ट पे आप ऐसे खुलेआम घूम रहे हो. एंड स्पेशली खुलेआम जो चीजें कपल्स कर रहे हैं पार्क में बैठकर, ये सब यार पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, इट इज गुड बट देयर इज अ थिन लाइन. या बैठो हाथ पकड़ के, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट इट्स नॉट आप लाइक घुसे हो एक दूसरे के अंदर. दैट्स द प्रॉब्लम. आप घुसे हो, व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट आवर कल्चर. सभ्यता को ले आओ ना यार, पहले नंगे होके चल दियो तुम. सो यार रिलेशनशिप से हमने कॉन्वर्सेशन अभी ये जो सवाल चल रहा था, सो हर किसी का एक होता है कि दिस थिंग इज ग्रीन फ्लैग फॉर मी एंड दैट थिंग इज रेड फ्लैग फॉर मी. And Instagram पे it is also trending #green flag, #red flag. So what is green flag for Pavitra Punia? There is no green flag and there is no red flag for Pavitra Punia. Okay. There is no flag. Relationships are not flags. Okay. Wrong statement. Okay. Relationship झंडे नहीं होते हैं कि लाल लगाया कि हरा लगाया. Okay. वो झंडा माँ बाप से बात करो तो मुंह में डाल देंगे, ठोक देंगे तुम्हारे कि ये क्या होता है. आज माँ बाप को ये नहीं पता ब्रेकअप का मतलब क्या है. तुम ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग ले आए हो. अच्छा, पति ने टेढ़ी बात की, ही इज अ रेड फ्लैग. Oh yeah. अच्छा, उसने तुम्हारे पैर दबाए, ही इज अ ग्रीन फ्लैग. पति है, फ्लैग नहीं है. बॉय, अगर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है और अगर तुमने इसलिए बॉयफ्रेंड बनाया बिकॉज़ यू वांट टू गेट मैरिड टू हिम, आर यू गोइंग टू कॉल योर हस्बैंड हेलो ग्रीन फ्लैग? हेलो भाई साहब, रेड फ्लैग. व्हाट इज दैट? सो फॉर मी, नो. विराट कोहली को ग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं सब. What's your call on this? Green forest. I think in all the respect, yeah, he's a husband. Yeah. वो एक पत्नीव्रता पुरुष है. Yeah. Whereas it is both ways. Anushka is a पतिव्रता औरत. Yeah. You understand? So वो पति पत्नी है. ये एक्चुअली इंटरनेट की लैंग्वेज जो है. हाँ. Gen Z. मुझे लगता है ये इंटरनेट का जो रील्स चल रहे हैं, ये एक अलग ही लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं चीजों को लेकर. आप हो क्यों रहे हो? हाँ नहीं, आई एम जस्ट सेइंग. या मत हो ना. या इंस्टाग्राम ने मुंह खोला, ये थोड़ी बोला फॉलो. या देयर इज नो ग्रीन फ्लैग, नो रेड फ्लैग. ओके, सो पवित्रा आपके आने से पहले मैंने इंटरनेट पर अपने पेज पर डाला था कि पवित्रा इज कमिंग, सो इफ यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क. सो कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए हैं. अरे पहला सवाल, ओ माय गॉड, लड़के जो सबसे पहले लड़की से सवाल करते हैं. अच्छा, यू गेस, क्या पूछ सकते हैं एक सुंदर सी अच्छी सी लड़की से? सिंगल हो? या दैट्स द क्वेश्चन. वाह, गिव मी. क्या आप सिंगल हैं? ओ, इतना सोचना पड़ रहा है. कुछ तो धमाकेदार आने वाला है, इतना टाइम ले रहे हैं तो. नेक्स्ट. ओके, नो कमेंट्स. गाइस, ये बहुत सारे लड़कों को आप दिल तोड़ रहे हो. दिल का मैंने कुछ बोला क्या? नहीं ना, आप मतलब कुछ नहीं बोला, मतलब भ्रम में रखना चाहिए. जैसे भगवान चाहता, सब मतलब सब चाहते भगवान आए, भगवान दिखे, वो नहीं दिखता है. एग्जैक्टली. शुभेंद्र का ये सवाल है कि रानी ऑफ द जंगल शो जो था, क्या ये स्क्रिप्टेड था? शुभेंद्र, यस. शुभेंद्र फ्रॉम भोपाल. शुभेंद्र फ्रॉम भोपाल. नहीं, ये शो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं था. हमें ऐसा नहीं है कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होती थी, लेकिन वहाँ जो भी टास्क हम करते थे, जो भी चैलेंजेस होते थे, वो सिर्फ हमारे ऊपर होते थे. Okay. और वो मेरी जिंदगी का सबसे डेडली शो था अभी तक का. गॉड, जंगल, कीड़े मकोड़े एंड ऑल एनिमल्स. ओह यस. या. एंड इट्स सबसे ज़्यादा डेडली चीज़ ये थी, इमेजिन 12 बिल्लियों को एक कमरे में बंद कर दिया जाए, आवाज़ और झगड़े कितने हो. सो तो 12 cats I'm indicating as 12 women. Yeah, exactly. Next, okay. आयुषी का ये सवाल है, इनफैक्ट पारुल का भी, समथिंग रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ. मैं इनका यूजर नेम भी बता सकती हूँ अगर आप उनको जवाब देना है तो. व्हाई शी ब्रोक अप विद एजाज, दे लुक सो ग्रेट टुगेदर. एंड पारुल का भी यही है कि खान साहब नजर नहीं आते हैं अब आपकी प्रोफाइल पर. पारुल को बोलूंगी कि थोड़ा सा अपडेटेड रहिए, क्योंकि ये खबर पुरानी हो गई. एग्जैक्टली, हेडलाइंस है ना. अभी ऐसा हो गया कि खान साहब के साथ भी कोई दूसरा दिखने वाला हो या हमारे साथ भी, तो हम अभी तक भी पीछे हटके. थोड़ा सा आप अपना होमवर्क कर लीजिए
बुरा मत मानिएगा इस बात को बिल्कुल भी, मैं थोड़ा मजाक करती हूँ इससे, लेकिन और पहले वाले सवाल का कि वाई ब्रेकअप, दिखते अच्छे थे। मुझे जो चीज़ अच्छी दिखेगी उसका मतलब ये नहीं है ना कि वो जमेगी भी, जचेगी। हम खाना अच्छा दिखता है लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि वो खाना खा लिया जाए। फूल अच्छे दिखते हैं, खाना तो नहीं शुरू करेंगे ना उनको। तो दिखने में और ज़िंदगी बिताने में बहुत फ़र्क होता है। तो जब ऐसा लगता है, पॉसिबिलिटीज़ होती है कि नहीं निभा सकते, तो तब वो रिश्ते को ख़त्म कर देना बेहतर होता है। सो गाइस, यू आर लिसनिंग। सही टाइम पर हमें पता होना चाहिए वेयर टू स्टॉप। एग्जैक्टली। या सो ये जो सवाल है, सुरेश इनका नाम है, कि पवित्रा के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? सुरेश जी शादी को लेके पूछ रहे हैं कि काम आप दोनों के बता दो। आप लोग सब लोग बैठ के एक यज्ञ कराइए जिसमें मेरे नाम का यज्ञ हो, जिसमें बोला जाए कि पवित्रा जी इसी साल शादी कर लीजिए। ओह, पवित्रा जी इसी साल शादी कर लीजिए। You really want to, right? I never wanted to actually, Okay. but there are some emotional things that I am receiving from my mother. Okay. Because honestly, I really wanted to go in this kumbh and get sannyas. Okay, sorry. Yeah. Can you please repeat? No. Okay. So no, I really want to listen so that मैं उसके आगे का सवाल पूछूं। मुझे कुछ सुनाई दिया और I don't know how to respond. तो मुझे शादी नहीं करनी थी। हाँ. मैं इस साल ही कुंभ में जाके, जो महाकुंभ है, मैं इसमें संन्यास लेने वाली थी। Okay. हाँ। बट ऐसा नहीं, बट यू आर प्लानिंग कि नहीं इस साल? बट मैं संन्यास नहीं ले पाऊंगी बिकॉज I cannot really leave my family. Yeah. I lost my father. Now my mother and my brother are there. Yeah. So बहुत बड़ी फैमिली होती है, समझ आता है कि चलो ये लोग खुश हैं, बट एक है ना वो छत चली जाती है when the father is not there. So I don't want them to feel empty कि अब तो कुछ भी नहीं बचा, बेटी चली गई और बाप चला गया. So I have to now. My mother really wishes me to get married. And sometimes again the society pressure कि बाप नहीं है, जो कि लॉजिकल भी है कि लोग बोलेंगे बच्चों की शादी नहीं, बेटी की शादी नहीं कर पाई। सोसाइटी। So I would never want anybody because my mother is the one जिसने आज तक लोगों के मुंह बंद किए कि मेरी बेटी 3 बजे आए रात को, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, तुम कौन हो? Of course, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। So अब जब उनका है कि मैं उनको इस मौके पे ना कुछ सुनने दूँ ता उम्र जिंदगी के, अरे संन्यास लेके बैठ गई, तो आई थिंक इट इज माई ड्यूटी नाउ वो कर्तव्य निभाने का. सो फॉर हर सेक यस आई एम रेडी टू गेट मैरिड नाउ. या सो देयर इज अ न्यूज़ ऑफ कोर्स, बिकॉज आपने इस बारे में बात करी है. देयर इज एन एक्ट्रेस जिन्होंने रिसेंटली आई थिंक संन्यास. Oh, shut up. No? Okay. We can skip this. I don't know. I don't know why do they do that. I really don't know. Okay. Why do you have to do it? Yeah. So you would have done it earlier. Yeah. What is the point now? Yeah. Tell me that. What is the point now? Yeah. वही I don't you know. have lived. एक बार news I just got to know about it. थोड़ा सा ना ऐसा, एक तो my things are very controversial. Yeah. तुमने एक मिडिल एज में आके संन्यास लिया, समझ आता है. Yeah. If you are hurt from life, if you're hurt from parents, समझ आता है. If you're hurt from relationship, या अपनी जिंदगी से हताश हो कि अब मुझे ये सब कुछ सब छोड़ना है. तो जैसे आपने 35-36 साल तक की उम्र में संन्यास ले लिया, 20 साल की उम्र में ले लिया, आपने एक पूरी जिंदगी जी ली है, उसके बाद उसको संन्यास नहीं कहते. सॉरी. Okay. Yeah. Even the people who are giving it, जिन्होंने दिया भी है, वो संन्यास नहीं है. वो आदमी जी चुका है, अपने पूरे परपंच कर चुका है. दैट इज नॉट संन्यास. अब आपको संन्यास लिए बिना मोक्ष की तरफ वैसे ही बढ़ जाते आप. आपको दुनिया के सामने टीवी पे क्यों बवंडर करना पड़ा इस चीज का? दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग. एंड आई एम श्योर हमारे जितने भी महागुरु तपस्वी वगैरह हैं, उनको भी इस चीज से कहीं ना कहीं एतराज होगा कि ये क्या, ये किस तरीके का संन्यास, ये कौन सा संन्यास हो भाई. सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली. Yeah. No, whatever yeah, it yeah, is, whatever it is, this is the kahavat. No, I am not pinpointing anybody, but this is the kahavat. People are already talking about it. Like ये किस तरीके का? मतलब अब एज देखो ना, इस एज में आप खामोश हो गए, आप किसी से दीक्षा लेके फिर आप अपनी लाइफ जो बची थी वो कंटिन्यू कर सकते थे. बट नॉट कि आप पूरा मतलब पूरा न्यूज में एंड एवरीथिंग इस तरीके से. नाउ दिस इज अगेन माय पॉइंट ऑफ व्यू. मैं किसी को बोल ही नहीं रही हूँ कि मेरे बहकावे में आके कोई किसी को जज करे. आई एम हियर टू पुट माई पॉइंट ऑफ व्यू. मुझे ऐसे फील होता है कि उस चीज की जरूरत नहीं थी. अगर दिल में सच्ची में भक्ति होती है ना, तो बिना घोषणा किए भी हो सकता है, छुप के हो सकता है.
छुप के कर लो, Actually. ऐसे क्यों करना पड़ा? So it was lovely talking Thank to you. you. एक लास्ट सवाल था यहाँ पर अरे या विकास शर्मा का हाँ. कि मुझसे मिलकर कैसा लगा. ये भी मेरे इंस्टा पे आया था कि पूछना कि मेरे से मिलकर कैसा लगा. विकास शर्मा जी, हम आपसे हाल ही में मिले हैं और सही में बहुत अच्छा लगा. ऐसा लगा जैसे कुछ तो वो कहते हैं ना भाई बहन वाला कुछ तो कि ये एकदम लग रहा है अपनी तरह ही है, अपना ही है, ये हाँ. एकदम देसी, मतलब ये अपनी तरह ही है कोई. और बट जोक्स अपार्ट, अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एंड आई रियली फेल्ट गुड मीटिंग हिम एंड आई होप हम आगे भी लाइफ में कुछ वेंचर साथ में कर सकते हैं. या कुछ बड़ा करे हो. He is looking. Yeah, He's yeah. right there. Show is going on. शो इज गोइंग ऑन. भाई बहन सुन लिया लगता है. भाई बहन सुन लिया. ये कट नहीं होगा रे. हाँ, okay, so Pavitra, one last thing, because your fans would love to know about this कि आप अब next project क्या है, क्या plans हैं आपके, कहाँ नजर आने वाले हो अब आप? किसी reality show में, OTT platform पर या किसी TV serial में, where? मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं कभी भी प्लान नहीं करती कि अब नेक्स्ट क्या है. बट जैसे ही, क्योंकि अभी भी चीज़ें आ रही हैं, OTT की आ रही हैं, OTT में नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि जैसे रोल्स मुझे चाहिए ना वो नहीं मिलता है. एंड मैं खिलाफ हूँ थोड़ा सा अडल्ट सीन्स में. Yeah. थोड़ा सीन्स को एक्सप्लोर करने में उस वे से, क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ मैं कोई भी काम ऐसा करूँ जिसको फॉरवर्ड करना पड़े. Yeah. क्योंकि जिस काम को फॉरवर्ड करना पड़ रहा है मतलब उसकी ज़रूरत नहीं. तो जब ज़रूरत नहीं तो किया क्यों? Very nice point कि जो देख ही नहीं पा रहे हैं उसको क्यों ही करना किया. और मैं चाहती हूँ कि मेरा इतना सा काम भी लोग घुस के देखे, बैक रिवर्स करके देखे, ये वाला सीन दिखाना, ये वाला दिखाना, ना कि भाग जाए वो, जंप मार दे. तो वो नहीं करना चाहती. तो आई थिंक मेरा वेब सीरीज का काम वहाँ पे रुकता है. मेरा टीवी का काम प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन इट इज़ ऑल अबाउट नंबर्स. तो वो अगर जैसे ही वो फिगर फिट हो जाएगा वो मैं कर लूंगी. रियलिटी शो जो भी आएगा खुले हाथ से मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं. हाँ, फिल्म्स में मेरा कभी इंटरेस्ट रहा नहीं कि मैं फिल्म्स में जाऊं या बॉलीवुड के पर्दे पे जाऊं, कभी नहीं रहा. रियलिटी शोज आई थिंक आपके लिए एकदम वीडियो गेम की तरह है, चलो चल के खेलते हैं. yes I'm telling, I told you ना, मतलब आप मेरे को बोलो कि पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आ रही हूँ खेलने. I love this game. My favorite game. Yeah, it's like a booster for me. Yeah. Okay, so one last message you would love to give to every audience, और थोड़ी सी मेरी तारीफ करनी है तो बिल्कुल कर सकते हो. Thank you so much for hosting me, because बहुत रेयर ऐसे होस्ट होते हैं जो कट नहीं करते. Oh, you're one of them. Because जो आपका गेस्ट आता है ना, उसको स्पेस चाहिए होता है बात करने का. अदरवाइज होस्ट ऐसे होते तो चप 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 नहीं ये बताइए, नहीं ये बताइए, ये बताइए, अरे उसको भी बोलने दो. So thank you so much for letting me talk. Okay. You gave me that space and thank you so much for calling me here on the show. हालांकि मैं पॉडकास्ट नहीं करती हूँ, but I don't know, I felt really connected with you over phone and I had to come and say yes to you. And I hope ये सक्सेसफुल हो जाए, तथास्तु होगा. और आपका वो जो ड्रीम है शाहरुख खान वाला, सर बाकी सबको ये मैसेज दूंगी, लाइफ को बैलेंस करके चलो. जैसे सूरज है वैसे ही चंद्रमा भी है और वैसे ही सितारे भी हैं. यू हैव टू बैलेंस इट आउट. और बैलेंस कभी सीखा नहीं जाता, खुद से आता है. तो वो करके चलो और स्टिक टू योर कल्चर, स्टिक टू योर रूट्स, स्टिक टू योर रिलीजन, एंड दैट्स इट. थैंक यू. वाओ, वंडरफुल मैसेज. थैंक यू. लाइन अच्छी लगी एक्चुअली मुझे, जैसे चांद सितारे, वेरी नाइस, मीनिंगफुल. सो थैंक यू सो मच गाइस. और बाकी शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर. Okay. Thank you.